Hi everyone, this is your biology class. I'm your teacher Seema Atreja. Hope you all are doing very well. Welcome you all in my class. Let's continue our chapter How do organisms reproduce. This is our third video related to the same chapter as we already studied in our previous lecture asexual mode of reproduction in which only one organism is involved and genetically similar individuals are produced which are exactly similar to their parents. We can call these offsprings clone to their parents. When in nature such a unique method of reproduction is present which preserve the parental characteristics generation to generation, then why there is a need arises for another mode of reproduction. There are certain limitations in case of asexual reproduction as we already discussed in previous video. Asexual reproduction does not lead to genetic variation in a population. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड में पॉपुलेशन में कोई वेरिएशन अराइज नहीं होती है. द स्पीशीज में ओनली बी सूटेड टू वन हैबिटेट. एक पर्टिकुलर हैबिटेट में ही एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से प्रोड्यूस स्पीशीज का सर्वाइवल पॉसिबल है. इफ देयर इज एनी कैलामिटीज, एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन और डिजीज अराइजेज दैट में अफेक्ट ऑल द इंडिविजुअल्स इन ए पॉपुलेशन. अगर किसी भी तरह की एनवायरमेंटल कंडीशन एडवर्स हो जाती है, कोई डिजीज़ अपीयर हो जाती है, कोई कैलामिटीज़ हो जाती है एक पर्टिकुलर एरिया में, तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनने वाली पूरी पॉपुलेशन को वो अफेक्ट करती है. सो दिस इज द लिमिटेशन इन केस ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो देयर इज ए नीड ऑफ another mode of reproduction which can overcome these limitations which we observe in case of asexual reproduction. It means कोई ऐसा रिप्रोडक्शन का मेथड चाहिए जो नेचर में वेरिएशन को अराइज कर सके, बिकॉज वी नो व्हाट आर वेरिएशंस. वेरिएशंस आर द सोर्सेज ऑफ इवोल्यूशन. Because of variation, the species can adapt to new environment which gives them a survival advantage. And if a disease or any calamities arises, that will less likely to affect all the individuals in a population if they produce through a method of reproduction in which variation is there. So such kind of reproduction which exists in nature, which can produce genetic variation in the offspring, is known as the sexual reproduction. So this is our topic of discussion today. What is the significance of sexual reproduction? What is the need of sexual reproduction? How can sexual reproduction leads to variation and increases the survival of a species? Let us discuss this. What we observe in nature, bulls alone cannot produce new calves, nor can hens alone produce new chicks. What we observe in such cases, in case of higher animals, two parents are involved, both sexes are involved, one act as a male and other act as a female. So both sexes or both male and female parents are needed to produce new generation. And we call such kind of mode of reproduction is sexual reproduction, in which variation arises and which can overcome the limitations of asexual reproduction. That is, the variation arises in case of sexual reproduction which increase the survival of a species in adverse environmental condition. Now we discuss the concept how variation arises. What we observe, creation of two new cells from one involves copying of DNA as well as cellular apparatus.
जब भी एक पेरेंटल सेल से 2 डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है तो डीएनए की कॉपी बनती है। पेरेंटल सेल में डीएनए की कॉपी बनेगी, डीएनए रेप्लिकेट करेगा, अलॉन्ग विद डीएनए रेप्लिकेशन सेलुलर एपरेटस भी रेप्लिकेट करते हैं। क्यों डीएनए की कॉपी बनती है, सेलुलर एपरेटस भी डबल हो जाते हैं ताकि बनने वाली डॉटर सेल्स में डीएनए की कॉपी और सेलुलर एपरेटस को डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। But what we are noted down when there is replication or copying of DNA and cellular apparatus takes place, it is not an accurate process. ये कोई accurate process नहीं है कि exactly similar DNA की कॉपी या cellular apparatus produce हो जाते हैं। तो जब भी कॉपिंग ऑफ डीएनए होगा वो एब्सोल्युटली एक्यूरेट प्रोसेस नहीं होता है, जिसकी वजह से एरर प्रोड्यूस होती है। एंड दीज रिजल्टेंट एरर्स आर द सोर्सेज ऑफ वेरिएशन। जब डीएनए कॉपी एक्यूरेट नहीं बनेगी और उसमें डीएनए की कॉपी होते हुए डीएनए के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं और वही कॉपी ऑफ डीएनए जब नेक्स्ट जनरेशन में जाती है तो डीएनए का स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से कुछ नए करेक्टर्स डेवलप हो जाते हैं जिनको हम वेरिएशन कहते हैं। तो इस तरह से जब नई डॉटर सेल्स बनती हैं तो डीएनए कॉपिंग की वजह से एरर होती है और एरर की वजह से वेरिएशन प्रोड्यूस होती है। अभी हमने पढ़ा वेरिएशंस आर यूजफुल, दे इंक्रीजेस द सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल इन अ चेंज एनवायरनमेंट, बट एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी प्रोटेक्टेड बाय वेरिएशन। जितने भी ऑर्गेनिज्म नेचर में प्रेजेंट है वेरिएशन की वजह से उनको सर्वाइवल एडवांटेज सबको नहीं मिलती, बट इन अ पॉपुलेशन वेरिएशंस आर यूजफुल। बट एक पॉपुलेशन के लिए वेरिएशंस हमेशा यूजफुल होंगी। वाई वेरिएशंस आर यूजफुल इन ए पॉपुलेशन? बिकॉज वेरिएशंस आर यूजफुल फॉर ensuring the survival of the species। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए हमेशा वेरिएशंस यूजफुल नहीं होती, बट पॉपुलेशन में स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए वेरिएशंस हमेशा यूजफुल होती हैं। लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। In this example, I am considering the beetle population which present on the green bushes. Beetle is a kind of insect which live on the bushes and feed on the bushes. It depends on the green bushes for their nutritive material. उनकी leaves को ये beetle खाते हैं। What we observe in that case, that is color variation arises. पॉपुलेशन में क्या हुआ, कलर वेरिएशन अराइज हो गई। कुछ बीटल ग्रीन कलर के हो गए, कुछ रेड हो गए, कुछ ब्लू कलर के हो गए। ऑल ऑफ ए सडन वहाँ पर कोई प्रीडेटरी बर्ड, मान लीजिए क्रो, आ जाता है। अब ग्रीन बुशेस पर ग्रीन बीटल्स को कलर वेरिएशन की वजह से कलर एडवांटेज है। क्या कलर एडवांटेज हुई? इट कैन हाइड देमसेल्व्स इन ग्रीन बुशेस। ग्रीन बुशेस होने की वजह से ग्रीन बीटल को प्रीडेटरी बर्ड्स आइडेंटिफाई नहीं कर पाती है। एंड द अदर टू कलर वेरिएशन, दैट इज रेड एंड ब्लू, इनको आसानी से आइडेंटिफाई कर पाती है। तो प्रीडेटरी बर्ड्स रेड और ब्लू को फीड करती है, बीटल्स की पॉपुलेशन को ख़त्म कर देती है फीड करके, और ग्रीन को कलर एडवांटेज मिली जिसकी वजह से वो सर्वाइव करता है। तो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के लिए अगर हम वेरिएशंस को देखें, रेड और ब्लू के लिए, तो इनके लिए कलर वेरिएशन एडवांटेज प्रोवाइड नहीं कर रही है। बट अगर हम पूरी पॉपुलेशन को देखें तो पूरी पॉपुलेशन में क्या है, कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म में भी ग्रीन कलर वाला जो बीटल है वो सर्वाइव कर रहा है। आई थिंक विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि वेरिएशन एवरी इंडिविजुअल के लिए हमेशा यूजफुल नहीं हो सकती, उसके सर्वाइवल के एडवांटेज को इंक्रीज नहीं करती है, बट पॉपुलेशन के लिए वेरिएशन हमेशा यूजफुल रहेंगी, क्योंकि पॉपुलेशन में कोई ना कोई वेरिएशन वाला ऑर्गेनिज्म एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन होने पर भी सर्वाइव करेगा, एंड एंश्योरिंग द सर्वाइवल ऑफ द स्पीशीज। देयरफॉर मेक सेंस if organism came up with reproductive modes that allowed more and more variation to be generated. What I mean to say कि ऑर्गेनिज्म इस तरह के रिप्रोडक्टिव मोड्स को अडॉप्ट करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएशन जनरेट हो, जो स्पीशीज़ के सर्वाइवल के चांसेस को एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशन में जनरेट करने में हेल्प कर सके। What we observed
जनरेशन ऑफ वेरिएशन ड्यू टू डीएनए कॉपिंग इज़ अ फेयरली स्लो प्रोसेस. जब डीएनए कॉपिंग हो रही है, वेरिएशन हो रही है, बट ये बहुत स्लो प्रोसेस है. एंड इफ डीएनए कॉपिंग मैकेनिज्म वर टू बी लेस एक्यूरेट, डीएनए कॉपिंग हुई, उसमें एरर हुई, और एरर होने की वजह से जो रिजल्टेंट डीएनए की कॉपी बन रही है वो सेलुलर एपरेटस के साथ मिलकर वर्क ही नहीं कर रही है. सो क्या होगा? सेल वुड डाई. तो वेरिएशन होने के कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ. एक तो वेरिएशन डीएनए कॉपिंग में स्लो हो रही है, और वेरिएशन जो डीएनए कॉपिंग में वेरिएशन अराइज हो रही है, डीएनए की कॉपी जो बन रही है वो इतनी एक्यूरेट नहीं है कि वो सेलुलर एपरेटस के साथ मिलकर ठीक से वर्क कर सके, जिसकी वजह से सेल की डेथ हो जाती है. सो वेरिएशन का रेट स्लो है, और जो वेरिएशन अराइज हुई है वो यूज़फुल नहीं है. तो किस तरह से हम वेरिएशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर सकते हैं ताकि होने वाली वेरिएशन में कुछ यूज़फुल वेरिएशन भी हो. मे बी कुछ वेरिएशन की वजह से इंडिविजुअल डाई कर रहा है, बट कुछ वेरिएशन तो यूज़फुल होंगी. अगर वेरिएशन के प्रोसेस को स्पीड अप कर दिया जाए तो नेचर में स्पीशीज़ के सर्वाइवल चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे. हमने क्या ऑब्जर्व किया? डीएनए की कॉपी बनी, वेरिएशन अराइज हुई. नेक्स्ट टाइम फिर से डीएनए की कॉपी होगी, फिर से वेरिएशन अराइज होगी. नेक्स्ट टाइम फिर से डीएनए रेप्लिकेशन होगा, वेरिएशन अराइज होगी. तो हम क्या देख रहे हैं? वेरिएशंस जो हैं वो एक्यूमुलेट होती चली जा रही हैं जनरेशन टू जनरेशन. लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ ए एग्जाम्पल. डीएनए कॉपी बनी, फर्स्ट जनरेशन में प्रोड्यूस हुई, और ये वेरिएशन यहाँ पर अराइज हुई. नेक्स्ट टाइम फिर से नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस हुई, सेकेंड जनरेशन प्रोड्यूस हुई. तो नेक्स्ट वेरिएशन हम इसमें ऑब्जर्व करें, पहली वेरिएशन भी प्रेजेंट है, दूसरी वेरिएशन फिर से अराइज हो गई. थर्ड जनरेशन प्रोड्यूस हुई, अनदर वेरिएशन हम यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं. फोर्थ जनरेशन प्रोड्यूस हुई, अनदर वेरिएशन हम यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हैं. तो व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग थ्रू दिस एग्जाम्पल, वेरिएशंस एक्यूमुलेटेड जनरेशन आफ्टर जनरेशन. एक जनरेशन में एक वेरिएशन आती है, दूसरी जनरेशन में और वेरिएशन इकट्ठी हो जाती है, तीसरी में फिर से वेरिएशन प्रोड्यूस होती है, नेक्स्ट जनरेशन में फिर से वेरिएशन प्रोड्यूस हो रही है. तो धीरे धीरे क्या हो रहा है? वेरिएशंस एक्यूमुलेट होती चली जा रही हैं जनरेशन टू जनरेशन. दैट मीन्स डिफरेंट इंडिविजुअल्स जो नेचर में प्रोड्यूस हो रहे हैं एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, उनमें वेरिएशन को एक्यूमुलेट होने का डिफरेंट पैटर्न है. अगर हम इन इंडिविजुअल्स को जिनमें डिफरेंट वेरिएशंस प्रेजेंट हैं, किसी तरह से इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स की वेरिएशन को कंबाइन कर दें, सो क्या होगा? नेचर में कुछ और वेरिएशंस वाले कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस हो जाएंगे, और जितने भी कॉम्बिनेशन से नए वेरिएशन प्रोड्यूस हो रहे हैं दे आर ऑल नॉवल, सब न्यू होंगे. तो ये क्या करेंगे? इंडिविजुअल के सर्वाइवल रेट को इंक्रीज करेंगे. व्हाट वी आर ऑब्जर्विंग इन दिस केस, इट वुड इन्वॉल्व टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में जो वेरिएशंस अलग अलग प्रेजेंट हैं, अगर हम दोनों इंडिविजुअल्स को मिलाकर एक तीसरा इंडिविजुअल बना दें जिसमें दोनों इंडिविजुअल की वेरिएशंस आ जाएंगी, तो इस तीसरे बनने वाले इंडिविजुअल में क्या होगा? डिफरेंट वेरिएशंस के कंबाइन होने से नई वेरिएशन अराइज हो रही है. एंड दैट्स इट द सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन which incorporates such a process. In sexual mode of reproduction, two parents are involved. One is male and other is female. क्या प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का? टू पेरेंट्स इन्वॉल्व हैं, वन एक्ट एज ए मेल पेरेंट एंड अदर एक्ट एज ए फीमेल पेरेंट. In case of higher organism where sexual mode of reproduction takes place, there are a special cell are present, special body organs are there. In case of, अगर हम ह्यूमन बींग की बात कर रहे हैं, in case of male there is testis, and in case of female there is ovary. These are the special reproductive organs
in which germ cell is present, which participate in reproduction. How many number of chromosomes are present in germ cells? 46 number of chromosomes are present in germ cells, both in case of male as well as in case of female. What is the first step in case of sexual reproduction? Gamete formation takes place. In case of male parent, male gametes are produced, and in case of female parent, female gamete is produced. Male gamete is known as the sperm and female gamete is known as the egg or ovum. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जर्म सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, मेल के केस में भी और फीमेल के केस में भी. इनसे बनने वाले मेल गैमेट और फीमेल गैमेट में अगर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम ही आए तो क्या होगा? जर्म सेल में 46, इसमें बने गैमेट, इसमें बने गैमेट, इनमें भी 46 गैमेट आपस में फ्यूज करके जाइगोट बनाएंगे. और जाइगोट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम आ जाएंगे? 92 क्रोमोसोम. ह्यूमन स्पीशीज में तो कहीं किसी सेल में 92 क्रोमोसोम नहीं होते हैं, तो ये अब नॉर्मेलिटी को क्रिएट करेगा, सर्वाइवली पॉसिबल नहीं होगा. सो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन? देयर is meiosis or reductional division takes place in germ cell. What is meiosis or reductional division? Which reduces the chromosome number to half. जर्म सेल में 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, इसमें मियोसिस होगा, गैमेट बनेंगे. मियोसिस द रिडक्शनल डिवीजन जो क्रोमोसोम नंबर को रिड्यूस टू हाफ कर देता है. इसका मतलब बनने वाले गैमेट्स में 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही प्रेजेंट होंगे. 23 स्पर्म में प्रेजेंट होंगे और 23 एग में प्रेजेंट होंगे. इसके बाद क्या होगा? मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करता है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं. फर्टिलाइजेशन के केस में क्या हुआ? मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करके जाइगोट बना रहा है. तो 23 क्रोमोसोम मेल गैमेट से आ रहे हैं, 23 फीमेल गैमेट एग से आ रहे हैं. तो जाइगोट में कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो गए? अगेन 46 क्रोमोसोम नंबर जाइगोट में पूरे हो जाते हैं, जो कि जनरेशन टू जनरेशन रहेंगे. पेरेंटल सेल में भी 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम थे और नेक्स्ट बनने वाली जनरेशन में भी 46 आएंगे. जाइगोट इज द फर्स्ट सेल जिससे न्यू जनरेशन डेवलप होगी. जाइगोट में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है. इसके बाद एम्ब्रियो में कुछ चेंजेस आते हैं, ऑर्गेनोजेनेसिस ऑर्गन्स का डेवलपमेंट होता है, एंड ऑर्गेनोजेनेसिस के बाद एक पर्टिकुलर ऑफस्प्रिंग या ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो जाता है. व्हाट वी ऑब्जर्व, जब हम लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करें तो सिंपल लोअर ऑर्गेनिज्म में भी गैमेट्स बनेंगे अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, बट दीज गैमेट्स आर क्वाइट सिमिलर इन देयर शेप एंड साइज टू ईच अदर. But what we observe in case of higher organism like human being, the size of the gamete is almost different. Shape and size is totally different. Male gamete is smaller in size and it is motile structure. Female gamete is somewhat bigger in size and it contains the food store. इनके फ्यूजन से मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट बन रहा है. जाइगोट को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है या इंडिविजुअल बनता है. तो जाइगोट को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एनर्जी चाहिए, फूड चाहिए. तो वो फूड सोर्स क्या है? फीमेल गैमेट है, विच इज़ बिगर इन साइज एंड कंटेन स्टोर्ड फूड मटेरियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट. So sexual mode of reproduction overcome the limitations which we observe in the method of asexual reproduction. What we observe in case of asexual reproduction कि वेरिएशन वहाँ पर प्रोड्यूस नहीं होती है, तो इसलिए चेंज एनवायरनमेंट में स्पीशीज़ के सर्वाइवल के चांसेस कम होते हैं. तो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन अनदर मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की लिमिटेशंस को रिमूव करता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो वेरिएशन अराइज होती हैं वो क्या करते हैं? स्पीशीज़ के सर्वाइवल रेट को इंक्रीज कर देते हैं. So that's why the sexual mode of reproduction exists in higher organism. This is all about in this video. I think the concept is very much clear to you all. Thank you so much.